Hello everyone. Welcome back to my channel Ikjot Nursing Academy. Myself Ikjot Kaur, your teacher, and I welcome you all. And I tell you one thing before starting my class today, that we will discussing the topics related to psychology, psychiatry for GNM, BSc whole classes. So today I am telling you, please tell your friends also, those who are liking my videos and regularly watching. Some students are regularly watching my videos, commenting also. So first I will tell you thank you very much to all, and please share my videos and tell your friends also more and more to subscribe my channel and get benefited from this. And because I am teaching you according to your syllabus only, whatever the topic I am teaching here in my YouTube channel, it is according to INC syllabus from any state. If you are watching me, it is important topics, questions also I am telling in between also related to the topic. So please tell your friends also that they will also subscribe my channel, and whenever they will want to study some topics, they will definitely get benefited. Because nowadays it's the pandemic time and we are not most of the colleges are not opened on physical basis, so you will all will get benefit. And if you see my channel, it is around 500 subscriptions are there at present, 400 plus. So when I got 1000, that is my first target. When I got 1000 nursing students, then I start live classes for the students also. And whatever the topics you want, then that also I am discussing that topics only, those who are demanding by the students also. So then I will start those also. तो प्लीज सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि सबको बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो, मेरा भी चैनल ग्रोथ करेगा. सो अगर मेरे चैनल 1000 हो जाता है, आई विल स्टार्ट लाइव क्लासेस ऑन दैट टाइम. एंड दिस इज माय फर्स्ट टारगेट एंड हेल्प मी आल्सो टू ग्रो. सो थैंक यू सो मच. जो बच्चे मुझे रेगुलरली देखते हैं, वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, बी कंटिन्यू. वी विल यू विल definitely get benefited from some time. After some time I will start giving you important questions for your exams also, for your finals. Like in every state after 2 months, I think so, there will be finals, 2 or 3 months. So we will start discussing that soon. So today I am going to discuss one topic that is related to psychology for all nursing students, either you are in BSc, post basic BSc nursing or GNM nursing. इट इज अ कॉमन टॉपिक और सबके लिए है. नर्स, दैट इज लर्निंग एंड इट्स लॉ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस. इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है यूर फाइनल्स में, चाहे वो लॉज आ जाए, चाहे वो लर्निंग का कंसेप्ट आ जाए, कुछ भी, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, चाहे वो 10 मार्क्स आए. इट इज अप टू योर लक कि वो कितने मार्क्स का आता है, बट आना जरूर है, ये पक्की बात है. ये आप लोगों के लिए 100% है, ये टॉपिक आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप स्टार्ट करते हैं. लॉस एंड इट्स लर्निंग एंड इट्स लॉ, सॉरी. सो फर्स्ट इज द लॉस. what is learning? So we are having different type of learning. So what is learning? Firstly, learning is nothing. Learning is simply what we are doing, how we are able to do these things, because we learned anywhere. Child learn to eat इन द जब हम छोटे थे तो हमने स्कूल जाना सीखा, वहाँ ABCD लिखनी सीखी, हमने खाना खाना सीखा, चलना सीखा, बहुत. और आज भी हम सीख रहे हैं. आज हम अगर नर्सिंग कोर्स कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग नर्सिंग रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हो, प्रोफेशनल्स बन रहे हो. आफ्टर 1 और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स आप लोग अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर लोगे, डिप्लोमास कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल बी अ रजिस्टर्ड नर्स in your country, or you can have other opportunities also. So why you are doing these things? You are learning this program because you want to grow. So how we are learning these things? So we are having various types of learning. First is stimulus response learning, second is perceptual learning, third is verbal learning, and fourth is motor learning. First is stimulus response learning,
perceptual learning, verbal learning, and motor learning. Now we will see what is it. First is stimulus response learning. What is stimulus response learning? It refers to association of response with a stimulus. Stimulus means कोई भी एक ऑब्जेक्ट आएगी हमारे सामने या कोई सिचुएशन आएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स करते हैं उस सिचुएशन को बोला जाता है स्टिमुलस. कोई भी एक सिचुएशन जो हमारे सामने आती है जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं. सिंपल सी बात अगर हम लगा के चलें, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर हमें सामने से एक फास्ट कार एक आती हुई दिखती है हमारी तरफ तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं. हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, या तो हम बैक हो जाते हैं, जहां हम फास्ट रन करके क्रॉस कर जाते हैं. तो दैट इज स्टिमुलस. क्या था? कार थी जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को रिस्पॉन्स शो किया. सो दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग. लर्निंग मीन्स अब हमने स्टिमुलस से सीखना है, तो हम स्टिमुलस से कैसे सीखेंगे? अभी आपका स्टिमुलस क्या है? अगर हम अभी की बात करें तो अभी आपका स्टिमुलस क्या है कि मैम पढ़ा रही हैं, क्लास ले रही हैं, तो वो आपका एक स्टिमुलस है. आपको वहां से यू आर एबल टू हियर दैट टॉपिक, तो आप उस टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो. दैट इज योर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग. सो वी आर हैविंग इट इज अ बॉन्ड बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स. हम एक बॉन्ड होता है, एक कनेक्शन होता है किसके बीच में? स्टिमुलस के बीच में और एक रिस्पॉन्स के बीच में. आप रिस्पॉन्स वैसा ही करोगे जैसा आपके सामने स्टिमुलस आएगा. ठीक है. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स इन दिस स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग. दिस इज अ फर्स्ट type that is stimulus response learning which we are learning in learning. First is classical conditioning, second is instrumental conditioning. Stimulus क्या है? कंडीशन है. एक अगर हम सोचे तो एक कंडीशन आती है हमारे सामने. सो फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशन लर्निंग. सो क्लासिकल कंडीशन लर्निंग क्या होती है? एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलस. दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन होना, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हुई? दो स्टिमुलस के बीच में रिस्पॉन्स आना. दैट इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग. अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, दो स्टिमुलस होते हैं, अनकंडीशनल एंड कंडीशनड. दो चीजें आएंगी इसमें. अगर हम स्टोरी पढ़ेंगे, जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे. पहली चीज होगी अनकंडीशनल स्टिमुलस, सेकेंड चीज होगी कंडीशनल स्टिमुलस. तो फर्स्ट है एग्जाम्पल. हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज डॉग की एग्जाम्पल है. ही एक्सपीरियंस्ड ऑन हिज डॉग. एक्सपेरिमेंटल जो था, जो साइंटिस्ट था, उसने किस पे ये सर्च किया था? अपने डॉग के ऊपर. ही वांटेड टू मेजर द अमाउंट ऑफ स्लाइवा. वो क्या मेजर करना चाहता था? अमाउंट ऑफ स्लाइवा विच वुड फ्लो व्हेन ही एट हिज फूड. मीन्स वो एक डॉग का स्लाइवा मेजर करना चाहता था कि एक कंडीशन रख के देखता हूं कि इसको बिफोर फूड कितनी स्लाइवेशन होती है. अगर इसे पता चल जाता है कि मेरे को फूड मिलने वाला है, या इसे नहीं पता, सडन इसके पास आता है, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? एक कुछ ऐसी एग्जांपल है, वो ऐसे इसको देखना चाहता था. अब हम इसको पहले पढ़ते हैं. द फ्लो ऑफ स्लाइवा व्हेन फूड इज एक्चुअली इन द माउथ इज अ नेचुरल प्रोसेस. जब हमारे माउथ में फूड है, सेम प्रोसेस है, डॉग के भी माउथ में फूड होगा, तो ऑब्वियस ये बात है उसके साथ स्लाइवा ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है. बट पेल्वन फाउंड दैट द स्लाइवा वाज अरोज्ड. उसने, साइंटिस्ट ने, पेल्वन ने क्या फाउंड किया? स्लाइवा कब आता है? इवन बाय such stimuli as the sight of the dish or the sound of footsteps of a servant who brought the food, or at the sound of bell which used to ring at the time of food was brought. अब उसने कंडीशंस रखी. अब वो क्या मेजर करना चाहता था? वो ये मेजर करना चाहता था कि स्लाइवा कितना अरोज होगा जब स्टिमुलस आएगा. क्या, कौन कौन सा स्टिमुलस हो सकता है? कि उसने देखा कि डॉग देख लेगा, साइड देख लेगा कि उसकी प्लेट जो है, डिश जो है, वो जो सर्वेंट है उसने ले ली है, मीन्स उसे कुछ मिलने वाला है. द साउंड ऑफ फुटस्टेप ऑफ द सर्वेंट. फुटस्टेप की आवाज आ रही है कि डॉग को लग रहा है कि हाँ, सर्वेंट मेरी तरफ आ रहा है, कि मेरी तरफ फूड लेके आ रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज एट द टाइम. अब उसने तीसरी कंडीशन रखी कि जब बेल बजाएंगे हम उसके लिए,
कि हाँ खाना तुम्हें बेल बजने पे मिलेगा, ऐसी वाली कंडीशन आएगी, बेल रिंग होगी तो उसको कितनी स्लाइवेशन होगी। ऑल दिस स्टिमुलस कैन कॉज आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, ये जितने भी स्टिमुलाई थे ये क्या कॉज करेंगे, एक आर्टिफिशियल सिनेरियो कॉज करेंगे। एंड द फ्लो ऑफ स्लाइवा द कंडीशनल रिस्पॉन्स टू दो स्टिमुलाई। अब हमने कंडीशनल रिस्पॉन्स देखना है उसका, कि उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ। अब हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं, अब हमने स्टोरी पढ़ ली है, अब हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो सीक्वेंस वाइज क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। फूड ईटिंग, उसे पता था कि हाँ खाना है मेरे सामने, ठीक है। अनकंडीशनली उसने रिस्पॉन्स दिया, उसको स्लाइवेशन हो रही थी। अब फिर दोबारा हमने देखा अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल क्या था, उसको खाना दिखाई दिया, कंडीशन नहीं रखी गई, सिर्फ उसे खाना दिख रहा था, यहाँ खाना मेरे सामने है, साइट ऑफ फूड। उसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हुआ, जब उसके सामने फूड था तो उसने कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या शो करा, स्लाइवेशन शो करी, क्यों, उसे साइट ऑफ फूड दिख रहा था, खाना दिख रहा था। अब नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन क्या आई, कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस क्या दिया गया, एक बेल बजा दी गई, खाना उसके रूम में ले जाने से पहले एक बेल बजा दी गई, नो रिस्पॉन्स, नो स्लाइवेशन। क्यों, क्योंकि उसे पहली बार पता ही नहीं था कि बेल बजने पे मेरे पास खाना आ रहा है, उसने कहा नॉर्मल बेल बज रही है, उसको कोई स्लाइवेशन नहीं हुआ। अब इन्होंने दोनों चीजों को मैच किया, अनकंडीशनल थिंग है फूड, फूड कोई कंडीशन नहीं है, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अटैच कर दिया उसे कंडीशनल स्टिमुलस के साथ, दैट इज बेल। बेल बजानी है जब उसे खाना देना है, तो अब उसे पता चल गया, तो उसका कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया, दैट इज स्लाइवेशन। जब दोनों चीजों को अटैच कर दिया गया, दो बार उसके साथ ये चीज रिपीट करी जाएगी, तो उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया, स्लाइवेशन। कंडीशनल रिस्पॉन्स, अब बेल बजेगी, जब भी कभी बेल बजेगी डे में, तो वो क्या करेगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स ही हमें शो करेगा, दैट इज कंडीशनल लर्निंग। कंडीशन थी बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, उसका अकॉर्डिंग ही वो स्लाइवेशन शो करेगा। तो दैट इज अ सीक्वेंस, कि हम कैसे कोई चीज को लर्न करते हैं। जब हमारे पास कंडीशन हमें पता चल जाती है, हाँ हम इस वजह से लर्न कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे लर्न करते हैं। दैट इज कंडीशनल लर्निंग का फर्स्ट। कंडीशनल लर्निंग हमारी फर्स्ट टाइप है, जिसके किसकी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेकेंड टाइप पे जाते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है, इन दिस कनेक्शन बिटवीन अ स्टिमुलस और अ रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन्ड और वीकेंड बाय द सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स। बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा फर्स्ट टाइप में, दैट इज कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के बीच में और रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, हमने जो बात करी थी, उसको स्ट्रेंथन और वीकन करेंगे हम इस इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। कैसे करेंगे, बाय द सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स। हम उसको जो रिस्पॉन्स दिखाएंगे पर्सन को, वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल रीइंफोर्समेंट, सॉरी, रीइंफोर्समेंट मीन्स इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, सब जानते होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, हम आपको शाबाशी दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ यू डन वेरी वेल, आपको कुछ गिफ्ट ऑफर हुआ है उसके, अगर आपने कुछ अच्छा किया है, आपको कुछ सरप्राइज मिला है, या आपको सिंपल सी चीज कुछ चॉकलेट भी मिली हो, तो दैट इज रीइंफोर्समेंट, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स कि आपने तो अच्छा किया, बट आपको रिस्पॉन्स क्या मिला, फिर भी डांट मिली घर से, आपको किसी ने फिर भी डांट दिया, तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इन तीनों चीजों से भी हमारी लर्निंग जो है वो इफेक्टेड होती है, दैट इज रीइंफोर्समेंट, दैट इज हम इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। क्यों, अगर हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, इंस्ट्रूमेंट कुछ मिलता है, हमारे माइंड में क्लिक होता है, तभी हम लर्निंग करने जाते हैं। आपको पता है आपके लास्ट टाइम 70% मार्क्स आए थे, इसलिए अब इस बार नेक्स्ट टाइम ज्यादा मेहनत करोगे, नहीं मुझे 75 लेने हैं, मुझे 70 स्कोर करने पे सबने बहुत प्रेज किया था, मुझे मेरे पसंद की कुछ भी गिफ्ट मिली थी, तो दैट इज
instrumental conditioning. Now we are moving to the second type of learning, that is perceptual learning. Means हम कुछ चीजें हैं जो हम अपनी परसेप्शन से सीखते हैं. परसेप्शन से कैसे लर्न करते हो? दैट इज वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स, and I know everybody know that sense organ. There is no need to tell these 5 sense organs. That is, so while using these sense organs, by sight, hearing, taste, smell, touch, this is the, we will considering these things as a 5 gateway of knowledge. In the second line it is there, we are considering it is 5 gateway of knowledge. All knowledge is based on sense perception. तो हम जो भी चीज लर्न करते हैं, आप सेंस परसेप्शन से ही लर्न करते हैं. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग. द इंडिविजुअल रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर सेंस ऑर्गन्स एंड इंटरप्ट देम इन अ लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस. कुछ भी आप लर्न कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स लर्न कर रहे हो. अभी आप मेरा लेक्चर जो भी बच्चे सुन रहे होंगे तो वो अपनी हियरिंग यूज करके सुन रहे हो, समझ रहे हो, देन आप अपनी नेक्स्ट उसको लर्न कर पा रहे हो. दैट इज आप हियरिंग सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हो. आप कुछ चीज स्मेल करते हो, उससे समझते हो कि ये क्या है, तो ऑन दैट टाइम यू आर यूजिंग दैट सेंस ऑर्गन. कुछ चीजें हम देख के लर्न करते हैं. जब आप इसको स्टडी कर रहे होगे तो आप उसको देखोगे, जब आप लेक्चर नहीं सुन रहे होगे तो आप वहां से लर्न कर रहे हो. So we are using our 5 gateways of knowledge to learn the things. The individual receives information from sense organs and interrupt them in the light of previous experience. This attaching of meaning of senses is called perception. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके लर्न करते हैं, उसको पुरानी चीजों से भी अटैच करते हैं कि हाँ पहले मैंने ऐसे पढ़ा था, अब मैं ऐसे पढ़ रही हूँ. So what is this? This is our sensation which is called perception. इसको हम perception बोलते हैं. Learning is dependent on the relative perception of senses. तो learning क्या है? Simply हमारी second type जो है that is telling us that हमारी जो learning है वो किस पे depend करती है? हमारे sense organs पे depend करती है. Now we are moving to the third type, that is verbal learning. What is verbal learning? All learning taking place in the formal education is called verbal learning. जो भी लर्निंग आप फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट पे लर्न करते हो, फॉर्मली लर्न करते हो, दैट इज नोन एज वर्बल लर्निंग. लर्निंग इज दिस टाइप हेल्प्स इन द एक्विजिशन ऑफ वर्बल बिहेवियर. आप फॉर्मल चीजें लर्न करते हो, उसको हम कहते हैं वर्बल लर्निंग. तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? द लैंग्वेज वी स्पीक, communication devices we use as the result of such learning. अब जो फॉर्मल एजुकेशन से लर्न करते हो उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो अपनी सोसाइटी में. सो दिस लर्निंग विल हेल्प इन दोज एक्टिविटीज. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग एंड वी आर मूविंग टू द लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग, दैट इज मोटर लर्निंग. मोटर लर्निंग मीन्स वी आर यूजिंग अवर motor ability. So everybody knows our motor ability. So when learning involves primarily by the use of muscles, अगर हम कुछ लर्न कर रहे हैं जिसमें हम अपनी मोटर एबिलिटी को यूज कर रहे हैं, हमारे मसल्स को यूज कर रहे हैं. सिंपल एग्जांपल, व्हेन वी आर रेजिंग अवर हैंड्स, सो वी आर यूजिंग अवर मसल्स, हैंड मसल्स. सो लर्निंग टू वॉक, छोटे बच्चे वॉक करना सीखते हैं तो क्या वो यूज करके सीखते हैं? अपनी मोटर एबिलिटी. आज हम वॉक कर रहे हैं तो हम अपनी मोटर एबिलिटी से वर्क कर रहे हैं. स्विम करना, प्लेइंग बॉल और प्लेइंग बैडमिंटन, एनीथिंग, these are the learning which is the examples of motor learning. So now we are completed with the types of learning. So now we are moving to the laws of learning, and which is very important for all the batches, because sometimes in the GNM it is in your MCQs the law of learning will come, and otherwise short note always come on law of learning. So it is very important part, so beware. So various laws of learning. First is law of readiness. First we will enlist fastly, so we will able to understand all.
laws of readiness, law of effect, law of exercise, law of frequency, law of disuse, law of recency, law of primacy, law of purpose, law of association. These are the different laws. We will count how many they are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So totally it is 9 laws of learning. So you can remember always that you are having 9 law of learning. So if you were forget, so you can able to recall. So first is law of readiness. That is, learning takes place best when the person is ready to learn. हम सबसे बेस्ट वे ऑफ लर्निंग और बेस्ट लॉ ऑफ लर्निंग क्या है? दैट इज कि हम लर्न करना चाहते हैं. व्हेन द पर्सन वांट्स टू लर्न, द नर्वस पाथवे इज रेडी फॉर द एक्शन. तो हमारा जो ब्रेन है, नर्वस पाथवे है, वो उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा और द रिस्पॉन्स क्विकली फॉलोज. तो हम फास्टली लर्न कर पाएंगे. दैट मीन्स फर्स्ट लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस. मीन्स द बेस्ट लॉ इट इज एक्चुअली कि जब हम पर्सन लर्न करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली उसका नर्वस रिस्पॉन्स वैसा ही होता है. इफ इट इज एग्जॉस्टेड और नॉट क्विक फॉर एक्शन, द रिस्पॉन्स डज नॉट फ्लो रेडीली. कई बार क्या होता है, आप क्लास पे बैठे होते हो, वेरी सिंपल एग्जांपल, बट आप बहुत टायर्ड होते हो, आपका बिल्कुल मन नहीं होता लर्निंग का. आप सुन तो रहे होते हो कि मैम क्या बोल रही हैं, कि आप वेस्ट नहीं, आप क्लास छोड़ना नहीं चाहते हो, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता. आपको सिर्फ 10-15% समझ आ रहा होता है, बट उससे ज्यादा नहीं आ रहा होता. दैट मीन्स ऑन दैट टाइम यू आर नॉट 100% रेडी टू लर्न दैट थिंग. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और टू लर्न 100%. ओके, लर्नर्स रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रेडीनेस ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स. हमारा 100%, जब हम कुछ लर्न करते हैं, हमारा 100% जो डिपेंडेंट है हम, कि हम कितना लर्न करने के लिए एक्टिवली बैठे हैं, कितना हम लर्न करना चाहते हैं, कितना हम रेडी हैं. तो दैट इज फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स द सक्सेसफुल reaction gives satisfaction to the individual and the same reaction tends to be repeated. सक्सेसफुल रिएक्शन क्या है? इफेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज का इफेक्ट होना. तो अगर हम इस फर्स्ट पॉइंट को पढ़ो ध्यान से, द सक्सेसफुल रिएक्शन गिव्स सेटिस्फेक्शन. अगर हमने कुछ काम किया, उसका जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेस रहा, 100%, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, दैट गिव्स अस सेटिस्फेक्शन. हमें क्या मिली? उससे सेटिस्फेक्शन मिली. एंड द सेम रिएक्शन टेंड टू बी रिपीटेड. हम उस एक्शन को दोबारा करेंगे, रिपीटिवली करेंगे, तो हम उसको लर्न कर रहे हैं. हम उसी चीज को लर्न कर लेंगे. हाँ, फर्स्ट टाइम करने से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है, तो मैं इसको दोबारा करूंगी. मीन्स आपने ऑटोमेटिकली उसको लर्न कर लिया. अनसक्सेसफुल रिएक्शन, अनसक्सेसफुल अगर हमारा इफेक्ट रहा, इफेक्ट जो है वो उससे हम क्या करेंगे? गिव अनॉयस टू द इंडिविजुअल एंड टेंड्स टू बी इनहिबिटेड. इससे पर्सन क्या होता है? परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, अनॉयस हो जाता है. दे डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन. वो नहीं, उस चीज को दोबारा याद ही नहीं करना चाहता. Thus, pleasure and pain have their effects on the learning action. तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इस लॉ से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्लेजर, खुशी, और पेन दोनों ही इफेक्ट करते हैं लर्निंग रिएक्शन पे, लर्निंग प्रोसेस पे. नेक्स्ट इज law of exercise. Law of exercise means learning are strengthened by practice. The use of any response strengthen it and make it more easy. Law of exercise क्या है? Law of exercise जो law है learning का, वो ये बताता है कि हम जितनी बार किसी चीज को repeat करते हैं, आप definitions याद करते हो, नर्सिंग में बहुत कॉमन चीज है, definitions एग्जाम में आती हैं. So आप जितनी बार उसको लिखते हो, जितनी बार उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हो, लर्न करते हो, उतनी वो आपको बाय हार्ट लर्न हो जाती है. अगर मैं एग्जांपल दूं, अपनी एग्जांपल दूं,
तो इन GNM फर्स्ट ईयर आई लर्न द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO, सभी बच्चे करते हैं, और दैट इज द ईयर 2005। मैंने उसको इतना लर्न कर लिया, इतना पढ़ लिया, उसको इतना अच्छे से लर्न कर लिया था, इतनी बार लिख लिया था, वो मुझे आज भी याद है। और नाउ आई completed my masters also in nursing in 2015, and total I am having 6 years of experience in teaching. So means law of exercise means जिस चीज को हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, बिकॉज वो वहीं पे खत्म नहीं हुई, वो हर साल किसी ना किसी प्रैक्टिकल में, किसी ना किसी एग्जाम में वो हेल्थ की डेफिनेशन आ जाती थी। उसके बाद हम पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो इतनी बाय हार्ट हो चुकी है, मीन्स उसकी एक्सरसाइज इतनी हो चुकी है कि वो हमेशा स्ट्रेंथन्ड है। दिस इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स अ लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कोरिलेटेड बाय द लॉ ऑफ यूज। मीन्स हमने जो एक बार लर्न कर लिया या एक बार देख ली चीज, हम उसको कितनी बार रिपीटिवली यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है उस यूज की। The more frequently a connection is exercised, अगर हम जितनी frequently एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उतना ही वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिसयूज। डिसयूज मीन्स हियर any learning process which is not practiced for some time gradually decays। मीन्स हमने कुछ लर्न किया था किसी टाइम पे, बट हमने उसको प्रैक्टिस करना छोड़ दिया लर्न करने के बाद, तो मीन्स वो ग्रेजुअली जो है, धीरे धीरे जो है, वो हम उस चीज को भूल जाएंगे। द यूज स्ट्रेंथनिंग आवर सिचुएशन। जितना हम किसी चीज को यूज करते हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती है, रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, और डिसयूज जो है वो वीकन कर देता है कनेक्शन को, और हम चीजें भूल जाते हैं। अगर मैं आप लोगों की एग्जांपल दूं, तो आपने 10th या +2 में जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों ने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस लर्न किए होंगे, बट अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप उनको रिकॉल नहीं करते हो, तो आप आज की डेट में अगर आप उसको रिकॉल करने जाओ तो आप देखोगे कि आप कुछ हद तक भूल चुके, और आने वाले टाइम में और भूल जाओगे। दैट इज लॉ ऑफ डिसयूज। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिसेंसी। That is, the law of recency is correlated to the law of disuse। correlated है, उसी से नेक्स्ट पार्ट है the more recently we exercise। हमने उसमें क्या बोला, डिसयूज की बात की, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे the stronger is the connection। हम उतना ही ज्यादा अच्छे से उस सिचुएशन को लर्न कर लेंगे, उस फिनोमिना को लर्न कर लेंगे, उस लेसन को लर्न कर लेंगे। That is law of recency। Next is law of primacy। The first experience and act। primacy means first time, primarily हमने जो चीज देखी या एक्सपीरियंस की, they are readily impressed in our mind। impression in our mind means जो चीज हम फर्स्ट डे देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं, उस चीज का हमारे माइंड में जरूर एक, हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लिक हो जाती है, वो फिट हो जाती है, मीन्स हम उस चीज को लर्न कर लेते हैं। द फर्स्ट डे एट स्कूल, द फर्स्ट एक्शन एक्ट इन लर्निंग टू सॉल्व पजल आर इजीली इम्प्रेस्ड। आप सबको अगर कुछ ज्यादा याद नहीं होगा तो हमेशा सबको ये अगर हम बहुत छोटे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्कूल की बात करें, तो वो हमेशा नहीं याद होगा, पर अगर आपने 5th या 7th स्टैंडर्ड में अपना स्कूल चेंज किया था या 8th स्टैंडर्ड में चेंज किया था, तो वो आपको फर्स्ट डे ऑफ दैट स्कूल आज भी याद होगा। आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज जो है कुछ हद तक आपको याद होगा। मींस फर्स्ट टाइम जो चीज हम देखते हैं उसका हमारे माइंड पे कुछ ना कुछ इंप्रेशन जो है वो हमेशा के लिए फिट हो जाता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पर्पस। लॉ ऑफ पर्पस मीन्स विद ये क्लियर सी चीज है, अगर हमारे पास किसी चीज का कोई पर्पस ही नहीं है तो हम उसको लर्न ही नहीं करेंगे। ये लॉ ये कहेगा एक्चुअली, विद अ क्लियर और डेफिनेट गोल इन अवर माइंड द स्टूडेंट वर्क टुवर्ड्स अ डेफिनेट पर्पस। आप सबके माइंड में एक गोल है, जो पोस्ट बेसिक कर रहे हैं उनको पता है हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, लर्न करना है, अपनी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट करनी है, हम पहले डिप्लोमा होल्डर हैं, हमें डिग्री लेनी है। जो बच्चे BSc कर रहे हैं, हमें
डिग्री कंप्लीट करनी है, जो जीएनएम कर रहे हैं उनको पता है हमें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, सक्सेसफुल होना है, रजिस्टर नर्स बनना है। सबका अपना अपना एक गोल है, अपने माइंड में सेट है। अगर हमारे पास वो गोल नहीं होगा तो आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि आपके एग्जाम्स कब होने हैं, हो जाएंगे साल बाद हो जाएंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, तो आप भी बैठे हो, ठीक है, जब होंगे तब याद कर लेंगे। आपको एक डेफिनेट पीरियड होता है कि हाँ इतने टाइम में आपका ये सिलेबस है, आपके एग्जाम होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही, हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को जो है हमारा लर्निंग, हमारा प्रोसेस जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन मीन्स it is on the basis of association of ideas that we can explain one idea gives way to another idea। मीन्स हमारे लर्निंग प्रोसेस में लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं। अगर हम समझे तो अगर आप एक चीज लर्न कर रहे हो, उसको आपने अगर एक टॉपिक की डेफिनेशन लर्न की है तो उससे रिलेटेड आप कॉसेस करोगे, उससे रिलेटेड आप नेक्स्ट चीज करोगे। सो देयर इज एन एसोसिएशन इन अवर लर्निंग, कनेक्शन है हमारी लर्निंग में, आइडियाज में। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द लॉज ऑफ लर्निंग एंड वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक इन लर्निंग, दैट इज फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग। फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग। सो अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज दैट इज मोटिवेशन, you are able to see on slide। second is practice। तो ऐसे ही हमारे पास nature of learning, learning methods, environmental factors, ये सारे factors हैं learner, ये सारे factors हैं जो हमारी learning को affect करते हैं। so we will discuss it one by one। first is motivation। motivation means learning is not possible without motivation। विदाउट मोटिवेशन हमारी लर्निंग जो है हम कर ही नहीं सकते। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, हमें पढ़ना है, एग्जाम में पास होना है, तो आप क्यों पढ़ोगे? सिंपल सी बात। सो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज मोटिवेशन, और ये भी एग्जाम में आ जाता है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान दे लेना। और आई थिंक सो मोटिवेशन फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग जो है, लर्निंग एंड फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग वेरी कॉमनली जो है एग्जाम्स में बहुत बार देखा गया है, और स्पेशली इन बीएससी एग्जाम्स बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, और इवन इन जीएनएम में जो डेफिनेशंस हैं उनमें भी बहुत बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, लर्निंग के क्वेश्चंस आते हैं, लॉज ऑफ लर्निंग आता है, और फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन, मीन्स लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। रियलाइजेशन ऑफ नीड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज। अगर हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, हमें वो लर्निंग के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, एनी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स विच हेल्प्स टू अचीव टू ऑफ गोल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लर्न करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसकी प्रैक्टिस करते हो बार बार। तो प्रैक्टिस जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस प्रैक्टिस इज अ रिस्पॉन्स मेक्स इट मोर स्ट्रेंथन लर्न्ड बाय द इंडिविजुअल। ये प्रैक्टिस क्या करती है? प्रैक्टिस जो है पर्सन को मोर स्ट्रांगली जो पर्टिकुलर पार्ट वो लर्न करना चाहता है वो लर्न कर पाता है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड प्रैक्टिसिंग डेली टू लर्न टू ड्राइव बाइसाइकिल, सो अल्टीमेटली दे लर्न इट, वो लर्न कर जाता है। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट। थर्ड इज नेचर ऑफ लर्निंग। अब नेचर क्या है लर्निंग की? नेचर क्या होता है? किसी चीज को हम क्यों लर्न करना चाहते हैं, क्या मीनिंग है उसका? मीनिंगफुल, लेंथ, मीनिंगलेसनेस, लेंथ सॉरी, एंड डिफिकल्ट लेवल ऑफ लर्निंग मटेरियल डू इफेक्ट द स्पीड ऑफ लर्निंग। मीनिंगफुल है, जो आप लर्न कर रहे हो उसका कोई मीनिंग है, उसका कोई लॉजिक है, आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए सॉरी, लर्निंग है, एंड डिफिकल्ट लेवल ऑफ लर्निंग मटेरियल है अगर आपके पास, तो आपको उसको लर्न करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। नेचर जो है वो उसका जो टाइम लेंथ है वो बढ़ जाएगा। अगर आपकी जो आप लर्न कर रहे हो वो बहुत इजी है,
आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है आपके टीचर का, तो आप वो इजीली फटाफट लर्न कर जाओगे. इट इज फाउंड दैट मीनिंगफुल मटेरियल इज लर्न एट फास्टर स्पीड देन नॉन मीनिंगफुल मटेरियल. सिमिलरली इजी मटेरियल इज लर्न इजीली देन डिफिकल्ट मटेरियल. इट इज वेरी सिंपल. Next thing is learning methods. Learning method is method of learning also affect the learning process. It is found that active learning is better than passive learning. तो अगर हम learning methods की बात करें तो we are having two methods of learning, that is active learning and passive learning. Active learning means आप participate कर रहे हो अपनी learning में, आप उस चीज को learn करना चाहते हो, आप active बैठे हो. Passive learning आप कोई respond नहीं कर रहे, बस बैठे हो classroom में, ठीक है, पैसिव लर्नर्स हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा. सो दैट इज, अगर आप एक्टिव लर्नर्स हो, आपका मेथड जो है वो एक्टिव लर्नर्स में आपने अचीव सेट किया है, तो आप लर्निंग जो है वो फास्टली करोगे और इजीली करोगे. इफ द लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग, द प्रोसेस विल हेल्प इन बेटर लर्निंग. आप बेटर लर्न कर पाओगे. नेक्स्ट फैक्टर इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. Environmental factors like noise, temperature, light, air, surrounding factors, जो भी हमारे factors होते हैं वो also affect करते हैं learning की. learning में अगर मैं lecture अभी जैसे दे रही हूँ तो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा noise हो तो आप मेरी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे अच्छे से, तो आप learn क्या करोगे? आपको कोई interest ही नहीं आएगा. so dim light है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको irritation हो रही है बार बार, तो ये सब चीज़ें भी affect करती हैं learning process पे. Learning would be better in a peaceful and a lightful condition. Next thing is learner. अगर हम बात करें अब learners की, learners में भी कुछ चीजें होती हैं. Certain sets of learners also determine effect on learning, like interest, drug, trauma, age, intelligence, mental set, health, emotions. ये बहुत सारे factors हैं. लर्नर जो है, जो लर्न कर रहा है, जैसे मैं अगर मैं बोलूँ मैं लर्न कर रही हूँ, अगर मैं लर्न कर रही हूँ और मेरा उस चीज़ में लर्निंग में इंटरेस्ट है तो आई विल लर्न फास्टर. अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे लर्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा. ड्रग्स, सम ड्रग्स ऑल्सो इफेक्ट ऑन लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इफ द पर्सन इज ऑन ड्रग्स विच इज रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल पार्ट, सो मे बी दे आर डिप्रेस्ड अकॉर्डिंगली. उसके इफेक्ट से वो उसको नींद आ रही है, वो स्लीपी फील कर रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा, वो लर्न नहीं कर पा रहा. ऐसी भी कुछ चीज़ें होती, ड्रग्स होती हैं. वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है लर्नर, बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो वो क्या लर्न करेगा? नई चीज़ नहीं कर पाएगा. एज, सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वी आर हैविंग अवर बेस्ट एज ऑफ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, दैट इज द एडोलेसेंट टू अर्ली एडल्टहुड. जो आप लोगों की एज होगी, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, सो ये बेस्ट लर्निंग एज होती है. तो इसमें आप बहुत जल्दी ग्रास्प करते हो. सो एज, इससे पहले भी आपके जो आप लर्न कर रहे थे, जो स्कूल टाइम में जो बहुत छोटी एज में लर्न कर रहे थे, वो बहुत सिंपल पजल्स होते थे. सिंपल आपको पहले से स्टार्ट किया गया. जहाँ अब जब ओल्ड एज में चले जाते हैं हम, जब हमारी एज बढ़ जाती है, तो तब भी हमारा लर्निंग प्रोसेस है जो वो स्लो हो जाता है. इंटेलिजेंस लेवल वो सबका अपना अपना है. मेंटल सेट, हमारे माइंड में क्या सेट है कि हमें कितना लर्न करना है या नहीं करना है, हमें कितने स्कोर करना है, हमारे कितनी लर्निंग का मूड है. हेल्थ, अगर हेल्थ वाइज वी आर नॉट 100% हेल्दी, सो दैट इज ऑल्सो इफेक्ट अवर लर्निंग प्रोसेस. अवर इमोशन स्टेटस, हम कितने खुश हैं, हम कितने दुखी हैं, दैट इमोशंस ऑल्सो इफेक्ट अवर लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ लर्नर. दिस इज all about learning and laws of learning, and the third part is factor affecting learning. So thank you so much to all, and this is a complete topic of learning for all nursing students, whichever class you are studying, either GNM, BSc and post basic. It is according to your INC syllabus. So if you are hearing my video, please like it and subscribe my channel and help me also to grow. So we will start live classes soon. If you make my subscriptions up to, first target is 1000, so please share my channel with your friends also. So we will start soon for the other classes also. So thank you so much.